Every year, thousands of people in Pakistan face a battle they never expected, that is cancer. Some are unaware of the risks, many lose their lives. But what if there was an organization working to change this? One that spreads knowledge, empowers communities, and helps people take action before it's too late? That's Cancer Awareness and Prevention, a program dedicated to educating people about cancer, its risks, and how to prevent it. Cancer Awareness and Prevention is an organization focused on educating the public about cancer, its risk factors, and preventive strategies. The CEO of this organization is Professor Dr. Ata-ur-Rahman. The program aims to raise awareness about common cancers in Pakistan, promote healthy lifestyle choices to reduce cancer risk, provide guidance on early detection and screenings, organize workshops, campaigns, and vaccination drives, awareness campaigns, educating people through schools, communities, and social media, screening programs, organizing checkups to detect cancer early, health guidance, promoting healthy diet, exercise, vaccinations, HPV, hepatitis B, and avoiding tobacco. Community support, providing help and advice to patients and their families. Join Cancer Awareness and Prevention. Together, we can fight cancer and save lives. Next. Okay, the 100 type of the different types of cancer conditions are categorized as carcinoma, sarcoma, leukemia, lymphomas, and the central nervous system. Next. So these which we have to be discussed, the risk factors. So we have the two types of we categorize here in the two difference. The one component is the non-modifiable risk factor. Another component is the modifiable risk factor. The non-modifiable, which are not in our hand, we couldn't change it. Just like the familial history of the cancer in the families, just like gender. Male or female, just like the breast cancer is the more common in the female as compared to the male, and the prostate cancer in the males, increasing age, and definitely the genetics. The modifiable risk factor that we can change our therapeutic lifestyle, just like obesity, dietary factor, tobacco, alcohol, physical inactivity to reduce the radiation exposure, by improving our socioeconomic factor and the epigenetics changes. Just like yes, Malaika at the start, she explained that my PhD work in on the breast cancer risk factors. So similarly, unfortunately, most of the modifiable risk factor in my study becomes a significant study, just like the obesity, the dietary patterns, the physical inactivities, the epigenetic changes, just like a vitamin D deficiency cause epigenetic changes in the sporadic cases, not in the family history. Similarly, obesity genes, FTO genes, which I've seen in the cancer patients. So these are the very significant factors. Next, please. So in this study, before going into the detail of the nutrition management of the breast cancer, there is what's the response of the body response to the cancer. So the specific type of the cancer, the disease, its effect on the entire body, and its cause the primary nutrition deficiency. Just like when there is just like cancer in the intestine tract, just like see head and neck, the colon cancer, the gastric cancer. And there, so one of the causes is the fat soluble vitamins. When there is due to the malabsorption of the different nutrients, similarly when we discuss fat soluble vitamins, especially if they are deficient in the vitamin D in turns, so they may cause the osteopalacia or the rickets in the children. It's mean when there is the cancer live in its own part, but they also cause the other nutrition consequences with the cancer. Next. So similarly, when there is the abnormal tumors which cause the fistulas, so the malabsorption, adenocarcinoma, and the breast cancer, the intestine, they all are cause the electrolyte imbalances. The chemotherapy or radiation therapy cause the nausea, anorexia, increased hemolysis, which the bleeding from the lesion, the fistulas and malabsorption may also cause the iron, protein, folic vitamin, and different type of the deficiency which might
lead to the anemia. So along with the cancers, our body also exposed in terms of the anemia, in the osteomalacia, the electrolyte imbalances, weakness, and so on. So ultimately, the body is in the form of the is the one of the factors for the nutrient deficiencies, for the nutrients malabsorptions. Next. Medical nutrition therapy for the patient, as we already know कि हमारे पास जो patients की जब when the patient comes with us with the diagnosed with the cancer, तो हमारे पास we have the three mode of the cancers. जैसे उसमें हमारे we have the radiation therapy, chemotherapy, और जो है cancer oncology. So sometimes they are in the combined or individually जो है are that followed by the each other. So we have जो होता है हम कैंसर की हमारी थेरेपीज होती है. तो इसमें अब हमारे पास क्या होगा when we gives the either chemotherapy on सर्जिकल ऑन कॉल जो सर्जरी हो जाती है, या जो रेडिएशंस जो अंडरवेंट पेशेंट जा रहे होते हैं, they actually develop the different types of symptoms just like fatigue, cachexia, anorexia, anemia, fluid electron imbalances, hypoxia, dysphagia, xerostomia, dysphagia, esophagitis, malabsorption, stomatitis, nausea, vomiting, fever. These all are actually the consequences of the nutrition, the cancer therapy of the cancer patient. These all are the consequences of the active treatment. Next. सो बिफोर जब हम किसी भी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी न्यूट्रिशन केयर मैनेजमेंट स्टार्ट लेते हैं, तो सबसे पहले वी हैव टू बी यूज अवर न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस व्हेन द पेशेंट रेफर टू अस इन द ओपीडी और इन द इन पेशेंट और इन द आईसीयूज. फर्स्ट वी हैव टू बी जो पेशेंट की असेसमेंट करते हैं, न्यूट्रिशन असेसमेंट होती है, इसमें हम उसके एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, डाइटरी थेरेपी, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, डाइटरी थेरेपीज का डेटा लेते हैं. व्हेन वी हैव एंड द nutrition assessment it as the comprehensive care process of the just we have and the data in hand. Based on these data, we have make a nutrition diagnosis, not a medical diagnosis. Nutrition diagnosis is यहाँ पे कोई मेल एब्जॉर्प्शन की, कैल्शियम विटामिन डी एब्जॉर्प्शन से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या हमारे पास भी कुछ एनीमियाज आ रहा है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस की हिस्ट्री है, या हमारे पास क्या वी हैव द सिचुएशन. बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन डायग्नोस, लो कैलोरिक डाइट है, डायरिया, वॉमिटिंग, जो कुछ भी आ जाते हैं उसके बिहाइंड पे हम लीडर ऑन करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. न्यूट्रिशन इंटरवेंशन हम वी प्लान करते हैं, ठीक है. न्यूट्रिशन प्लान इज डिपेंड अपॉन एक्चुअली ऑन द असेसमेंट से हमारे पास जो न्यूट्रिशन डायग्नोज होते हैं, वी फोकस दैट्स द न्यूट्रिशन डायग्नोज. फिर हमारा प्लान होता है जस्ट लाइक orally we have to be allow orally specialized diets, therapeutics diets we have to be intervene करते हैं, or the patient depend on the tube feeding or on the total parental nutrition. So we have the mode of intervention in the three mode of treatment: oral, tube feeding, or the जो हमारे पास पेरेंटल आ जाते. इसके बाद हम वी आर मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन. पेशेंट की क्लियरली हम मॉनिटरिंग करते हैं. वी हैव टू बी कॉल देम फॉर देयर फॉलोअप्स when they come again 2 or 3 or 1 month to present to our clinic or in the inpatient whenever. Then we हम उसका weight loss जो weight का significant output देखते हैं, या जो different types का जो हमारा मैनेजमेंट हमने करता है उसका हम दोबारा से उसको चेक करते हैं, उसके प्लान्स को अपडेट करते हैं, क्योंकि हम वी हैव टू बी गिवन इन द टेलर्ड मेड इंडिविजुअल डाइट प्लान टू देम अकॉर्डिंगली. फिर जब हमारे पास हम मॉनिटरिंग करते हैं, फिर उस चीज को हम चेंज अपडेट वगैरह कर लेते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट. ठीक है. और इसके बाद हम पेशेंट्स की अकॉर्डिंग टू द आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेट करते हैं. फिर उसकी टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट हम 20 जो रूल ऑफ थंब या हैरिस एंड बेनेडिक्ट इक्वेशंस यूज करते हैं, 25 से लेके 35 किलो कैलोरी पर केजी पर बॉडी के हिसाब से. दैट माइट बी 15, 20,
400 किलो कैलोरीज तक हम जा सकते हैं. दैट्स ऑल डिपेंड अपॉन आवर जो हमारा जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको हम आइडियल बॉडी वेट के मुताबिक. सपोज वी हैव द पेशेंट आइडियल बॉडी वेट उसका 70 है, देन वी मल्टीप्लाई 70 विद 25, so वी हैव द 2000 किलो कैलोरीज. तो इसी तरह हम इसको कर लेते हैं. ओवर फीडिंग का हम वी हैव टू बी कीप इन माइंड के रिस्क ऑफ द रीफीडिंग सिंड्रोम का रखेंगे. व्हेन वी हैव द पेशेंट history of they have the poor intake from the last 1 week or the 10 days, then we compensate slowly and gradually increase their caloric requirement to prevent the condition just like the refeeding syndrome. Next please. Just like a protein yes was 0.8 to 1.23 जितना भी हमारा caloric requirement है we can हो. Just like 70 है we can multiply by 0.8 or 1.2 according to the patient's condition. जो history we have been taken in our NCP model during the nutrition assessment, वहाँ से हमारे पास एक clear picture आ जाएगी. Then we can जो हम interventions plan करते हैं basically depend on them. Next please. Or similarly, we have to be focused on their vitamin and minerals, focus on vitamin A, C, D, sodium, potassium. जितना भी हमारा उसका जो होगा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस, एसिड बेस बैलेंस, सबको हमने उनकी अर्ली रिकवरी और जितना भी हम उसको डिपेंड करेंगे. नेक्स्ट प्लीज. फ्लूइड्स की रिक्वायरमेंट भी हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट करें. 35 से 40 तक हमारा जितना भी होगा हम उसको जो है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट. इसी तरह है कि जब हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी प्लान करते हैं ना, तो दस वी फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन असेसमेंट करते हैं. उसके बाद न्यूट्रिशन डायग्नोज, बेस्ड ऑन द डायग्नोज फिर हम उसका न्यूट्रिशन इंटरवेंशन करते हैं. फिर हम उसके जो मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशंस करते हैं कि उनकी जो डायग्नोज साइन ऑफ सिम्टम्स जो है वो कितना रिकवरी उनमें आ गई है, उसके लिए हम ये करते हैं. ठीक है. उसके बाद बॉडीज रिस्पॉन्स टू द मेडिकल थेरेपी, जिस लाइक हमने हमारे प्रीवियस स्लाइड में था, वी हैव टू द बॉडीज रिस्पॉन्स कि कैंसर क्या करता है. उसके बाद बॉडी रिस्पॉन्स टू जो ऑलरेडी मैं आई हैव बी मेंशन कि वी हैव कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी जो है 3 मेंस हमारे पास उनकी. लेकिन बाय इन दिस वी हैव टू फोकस ऑन आवर मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी ड्यूरिंग द कीमोथेरेपी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ठीक है. अब इसमें देखिए न्यूट्रिशनल अल्ट्रेशन इन द कैंसर. आप देखें इन द कैंसर सिचुएशन we have already when the patient diagnosed with the cancer, their body in the catabolic state. बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में होगा, उसका मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म, स्लो कैटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, बॉडी में तोड़ फोड़ ज्यादा होगी, प्रोटीन कैलोरी सबकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और नाइट्रो बॉडी probably going into the negative nitrogen balance में जाएगा. सिमिलरली अगर यहाँ पे पेशेंट का कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी भी है तो मेनली सबकी ये देखें. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग द कीमोथेरेपी उसका जो उसके साइड इफेक्ट होंगे अर्ली सेटाइटी, डिस्फीजिया, nausea, vomiting, mucositis, taste and smell alteration, anorexia, GML absorption. ये सारा collectively क्या करेगा? To be these by these sign or symptoms, the patient reduce the food intake, and there is the food intake that be significantly leading towards the weight loss, and the weight loss at the end causing the malnutrition cachexia. इसका simple ये है when we have two patient A and B. A and B. So A and B suppose is the 32 years male or they're diagnosed with CA colon. हमारे पास patient B patient is 30 years old and does the same CA colon. ठीक है. एक जो पेशेंट ए है उसका 45 kg वेट है, जो हमारे पास पेशेंट बी है उसका 75 किलो वेट है. जब हमने उसका कीमोथेरेपी स्टार्ट लेंगे, जो 45 का होगा उसकी प्रोग्नोसिस बड़ी पुअर होंगी, उसकी जो टॉक्सिसिटी जो आएगी, म्यूकोसाइट डेवलप करेगा, सेम एनोरेक्सिक वो हो जाएगा, वॉमिटिंग, डायरिया लास्ट फॉर द जो कि वो ज्यादा लास्ट करेगा एज कम्पेयर जो हमारा बी पेशेंट होगा. ठीक है. उसका 3 days का नोजिया वॉमिटिंग हो गया और उसके बाद जो है तो उसका वो अगेन ठीक हो गया, एनोरेक्सिया कुछ दिन रहा, वो नॉर्मल हो गया. उसकी 15 days या 21 days के बाद अगेन जब उसकी कीमोथेरेपी का सेशन आ गया वो सक्सेसफुल इसका हो गया. लेकिन जो हमारा पेशेंट A45 के साथ
उसका लो बर्थ वे जो उसका लो उसका वेट है उसका क्या होगा, उसकी म्यूकोसाइटिस टॉक्सिसिटी कीमोथेरेपी साइड इफेक्ट ज़्यादा है, उसने न्यूट्रोपेनिया कर लिया है, वो जब वो सेकंड सेशंस के लिए आया है तो उसका भी वो न्यूट्रोपेनिया डेवलप कर लिया उसने, वाइट ब्लड सेल उसके कम है, उसका फीवर ज़्यादा है, उसकी एडमिशंस हो गए। तो इसमें अब क्या होगा वो पेशेंट्स का एडमिशंस उसका हो जाएगा, तो उसकी जो जब वो इसके सेशंस हो जाएंगे वो डिले हो जाएंगे, वो इमरजेंसी में आएगा, वो एडमिट हो जाएगा, और उसके जो सेशंस होंगे वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। जो भी आएगा उसके सक्सेसफुली जो कीमोथेरेपी में 4 मंथ 3 मंथ्स में है गोइंग टूवर्ड्स द सर्जरी और फिर रेडिएशन, वो सक्सेसफुली चला जाता है, उसकी वो सर्वेलियंस पे चला जाता है, और जो पेशेंट है 45 उसकी मोर्टेलिटी हाई हो जाती है। तो दैट इज द न्यूट्रिशन जो अल्ट्रेशन होता है वो इसमें हमारा के बेस्ट गुड न्यूट्रिशन स्टेटस का है। ये मैंने जो एग्जांपल्स दिए नॉट फ्रॉम द बुक्स एंड एवरीथिंग दैट्स इज आवर वी आर द आई विटनेस केयर प्रोसेसेस। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, जो हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेज आ जाएंगे कीमोथेरेपी में, मसल लॉस होगा, इंक्रीज टॉक्सिसिटी फ्रॉम कीमोथेरेपी, और वो रिड्यूस टॉलरेंस ऑफ एंटी कैंसर थेरेपी होगा, रिड्यूस इंडिपेंडेंस ऑफ क्वालिटी लाइफ, हायर कॉम्प्लिकेशन रिस्क, लॉन्गर हॉस्पिटल ग्रेटर देन स्टे, और रीएडमिशंस होंगे, इंक्रीज मोर्टेलिटी। यहाँ पे ये जो हमारा जो हमें आपको एग्जांपल्स दी हैं, हमारा बी जो पेशेंट है और जो हमारा ए पेशेंट है वो सफ़र करेगा ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस। जो हमारा बी होगा विद गुड न्यूट्रिशन स्टेटस, वो जो होगा उसको लेस जो है वो प्रोन होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। तो बस ये हमारा मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी में आएगा। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ कीमोथेरेपिक एजेंट रेपिडली रिड्यूसिंग नॉर्मल सेल मोस्ट अपेरेंट द सेल ऑफ बोन मैरो। ठीक है, उसमें बोन मैरो इफेक्ट या जो भी होगा, वाइट ब्लड सेल्स उसके कम हो जाएंगे, न्यूट्रोपीनिया वो डेवलप करेंगे, न्यूट्रोपीनिया के साथ मतलब जो न्यूट्रोपीनिया होगा उसमें क्या होगा, जो कीमोथेरेपी पेशेंट्स होते हैं, तो कीमोथेरेपी के पेशेंट्स जो होंगे तो उसमें वो न्यूट्रोपीनिया बड़ा कॉमन उसका साइड इफेक्ट होगा, लेकिन उसमें कुछ हम उसका डाइट का बड़ा ज़्यादा ख्याल है, उसमें हम न्यूट्रोपेनिक डाइट उनको देंगे। न्यूट्रोपेनिक डाइट में वो ज़्यादा होगा कि वो लो माइक्रोबियल डाइट होगा। ठीक है, वो बहुत माइक्रो तो इसमें भी न्यूट्रोपीनिया डाइट में क्या होगा, लो माइक्रोबियल डाइट हम उसको देंगे। ठीक है, उसमें जो हमारा जो डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे वो पास्चराइज्ड मिल्क यूज़ करेंगे, जो हमारे पास मीट होगा वो वेल कुक्ड होगा, जो रॉ वेजिटेबल्स फ्रूट्स वो ये नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, वो जो फ्रूट्स होंगे सबके जो पील ऑफ करेंगे उसके स्किन को वो प्रॉपरली यूज़ करेंगे, लाइव कल्चर बैक्टीरिया यानी पास्चराइज योगर्ट वो यूज़ करेंगे, बॉइल्ड वाटर वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा हाइजीन का वो ख्याल रखेंगे। ये हमारे पास न्यूट्रोपीनिया डाइट जो होगा वो हमारा इन पेशेंट्स के लिए हम देते हैं। आप नेक्स्ट चले जाएं प्लीज। GI इस पे इफेक्ट nausea, vomiting, stomatitis, anorexia, ulcer, diarrhea. These are the very common among the chemotherapy patient. और इसके along with this dumping syndrome जो होगा हमारे पास, अगर हमारे पास पेशेंट, इसका हम बड़ा ख्याल रखेंगे। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा फैटी शुगरी जो भी आइटम्स के वो फूड लेंगे तो उसका जो इफेक्ट होगा कि उसमें उनको बहुत ज़्यादा एब्डोमेन पेन्स और आएगा, तो इसको हम प्रिवेंट करेंगे। वो कमिंग स्लाइड्स में मैं आपको बता दी हूँ। नेक्स्ट प्लीज़। अ, अब हमारे पास यही होगा कि जीआई डिस्ट्रेस में हम कैसे इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और टाइमिंग ऑफ फीडिंग न्यूट्रिशनल जो है हम उसका ख्याल रखेंगे कि हाउ टू बी इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा जी, अब ये हमारा जो मेन हमारा फोकस है वो ये है कि उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं और हमने क्या करना है। कीमोथेरेपी वेरी कॉमन साइड इफेक्ट एनोरेक्सिया है, या अल्टर्ड परसेप्शन ऑफ डाइट एंड ऑर्डर हो जाते। ठीक है, हमारे पास पेशेंट आ जाते, दे इवन कांट बी टोलरेट द साइट ऑफ द फूड्स, और साइट ऑफ फूड को टोलरेट टू ईट देम इज द, तो बोथ इज द वेरी बिग थिंग। ठीक है ना, कि वो जब हम व्हेन दे आर present these type of patient to us in the OPD clinics or in the inpatient or in the chemo bay, तो वो इवन जब हम उसके वी टॉक टू देम अकॉर्डिंग टू देयर डाइट में, वो इनको हमारी बातों को फूड का जब हम नाम भी लेते थे वो उनकी शक्लें बन जाती थी, वो उसको नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, फिर खाना तो बहुत बड़ी बात होती। तो यहाँ पे बीइंग इन न्यूट्रिशन एक जॉब बड़ी चैलेंजिंग हो जाती है। वी हैव द चैलेंज, और कैसे हमने उनको इनकरेज और रिइंफोर्स करना होता है, उसको
हमने उसकी कॉन्सिक्वेंसेस और उसके रेशनेल्स बताने होते हैं कि अगर वो हमने जस्ट लाइक हम पेशेंट के साथ जब काउंसलिंग करते थे हम उसको कहते हैं कि इफ़ यू वांट, जब आप सुबह घर से आ रहे थे आपका जी चाह रहा था कि आप कैंसर हॉस्पिटल में आज अब कीमोथेरेपी आपको लेके रही, नो। तो जस्ट लाइक आपको फूड भी है कि जैसे आप ड्रिप नहीं लगाना चाहते, कीमोथेरेपी ये आपकी मजबूरी है, सिमिलरली ओरल इंटेक भी मजबूरी है, ना चाहते हुए भी फूड को आपने एज अ मेडिसन लेना है। आप फूड लेंगे, आपका न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, आपकी वेट लॉस की हिस्ट्री नहीं होगी, आप बेहतर होंगे, आपके लैब रिपोर्ट सीबीसी बेहतर होगी, तो आपकी सक्सेसफुली कीमोथेरेपी के सेशन जो 1 वीक 15 डेज या 21 डेज के बाद प्लान है वो सक्सेसफुली जाएंगे। तो हम पेशेंट्स को उसका बड़ा हम मतलब उसकी काउंसलिंग करते थे, उसको मोटिवेट करते थे, एफर्ट्स करते थे विद डिफरेंट एग्जाम्पल। अगर हम एनोरेक्सिया है तो भी प्रोवाइड स्मॉल फ्रीक्वेंट मील है, जो 3 मील्स के मुताबिक, जो उसमें हमारे पास मॉर्निंग जो मॉर्निंग स्नैक्स, लंच, इवनिंग जो हमारा स्नैक है, डिनर, बेड टाइम, थोड़ा थोड़ा सा ले लेकिन बार बार ले, ठीक है। ऑफर हाई कैलोरिक प्रोटीन डाइट, डेंस फूड, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा भी ले रहे हैं तो जो ले भी रहे हैं उसको ज्यादा डेंस करेगा। वो मिल्क शेक्स ले रहे हैं तो मिल्क शेक में उसमें डेट्स, उसमें मलाई, सब कुछ यूज़ करें, हनी का इस्तेमाल करें कि वो थोड़ा से भी ले रहे हैं लेकिन वो जो है एनर्जी और न्यूट्रिएंट डेंस हो। फूड अवॉइड फूड विद ऑफेंसिव ऑडोर, जो मिर्च मसाले वगैरह आ जाते हैं, वो वाली गरम गरम फूड उनके करीब ना लेकर आए कि उनके स्मेल्स कम हो जाए, ठीक है। जो उनकी टेस्ट एंड ऑडोर चेंज हो जाती है तो कैसे हर्ब्स, सीजनिंग कम समटाइम फूड का फ्लेवर एनहांस कर देते हैं, ठीक है। प्रोटीन रिच डाइट, चिकन, फिश, चीज, एग वगैरह दे देते हैं। सर्व कोल्ड फूड एंड बेवरेजेस मोर देन टू द हॉट फूड बेवरेजेस, ठीक है। प्रिपेयर एंड सर्व फूड इन द ग्लास मिक्सर एंड बनाना द बंद कर दिया। मील पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, सिमिलरली सोमेटाइटिस म्यूकोटाइस हो जाते हैं तो वही स्मॉल फ्रीक्वेंट मील हो, बहुत ज़्यादा एसिडिक और स्पाइसीज, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर फूड, सीजनल और एक्सेसिवली ये करे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ड्राई कोर्स जैसे बिस्किट्स या जो रस वगैरह वो जो है वो उनको अवॉइड करें, रादर देन सॉसेज एंड ग्रेवीज इनको दें, ठीक है। और ये सारा जो है इसके अलावा जीरोस्टोमिया जो हो जाती है उनकी, ड्राइनेस ऑफ माउथ, तो कैसे मॉइस्टन फूड विद सॉस, ग्रेवीज, लिक्विड, मायोनीज, योगर्ट, नेचुरली सॉफ्ट फूड, ये सारा दे दे, ठीक है। और डिस्फीजिया जो है इसके साथ, ठीक है। आपके क्वेश्चंस जो मैं रिप्लाई करूंगी एट द एंड ऑफ माय सेशंस जो है, आई विल रिप्लाई योर आंसर्स, ठीक है जी। आई नो कि मैं बड़ा तेज जा रही हूँ क्योंकि मुझे कहा गया था यू हैव द सेशन फॉर द 5 to 7 minutes, दैट्स व्हाई आई एम हैव टू बी हरी। डिस्फीजिया हो जाएगा, बड़ा कॉमन होता है इनमें, या तो सोमेटाइटिस या इसकी वजह से हो जाते हैं, और कुछ या हमारे पास डिस्फीजिया जो होगा, या जो एसोफेगस, सी एसोफेगस, या जो किसी भी ट्रीटमेंट की वजह से इनको हो जाता है, रेडिएशन थेरेपी की वजह से, या जो कीमोथेरेपी की वजह से बड़ा सीवियर म्यूकोटाइटिस वगैरह हो जाते हैं, तो इनको फूड सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। सो प्रोवाइड फूड विद लिक्विड सेमी प्यूरिड फॉर्म, मैक्सिमाइज कैलोरिक प्रोटीन डेंसिटी एज मच, यूज कमर्शियल अवेलेबल लिक्विड न्यूट्रिशन डाइट भी हो सकता है फॉर द अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट स्लाइड। सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, बट थोड़ा सा जल्दी कर लें, टाइम थोड़ा शॉर्ट है। मैं बड़ा तेज जा रही हूँ, आई थिंक बस फर्स्ट नेक्स्ट स्लाइड वुड बी द लास्ट। nausea, vomiting very common among the chemotherapy patient, yes, so give dry food without added fat, sauce, liquid, ज्यादा दे greasy ज्यादा ना हो, with strong odor ना हो, smell हो पहले, ठीक है। डायरिया में फ्लूइड करे, डिहाइड्रेशन ना, अवॉइड ग्रेसी रिच फैट फूड, और इसके बाद लेक्टोज का ख्याल रखें, ठीक है। हाई फाइबर फूड को भी अवॉइड करें। ग्रेसी जो गीसियस फ्रूट जो होते हैं, जो हमारे पास है, क्रोसीफेरस, वेजिटेबल, ब्रोकेलाई, ये वगैरह हम अवॉइड कर दे, अवॉइड कैफीन वगैरह कर दे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बड़ा हमारा डायरिया, नोजिया, जीरो जो डिस्फेजिया, जीरोस्टोमिया, वॉमिटिंग, ये बड़ा कॉमन होता है कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स में। तो दिस जो स्ट्रेटजीज देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूविंग देयर न्यूट्रिशन स्टेटस, मेंटेन देयर caloric, high caloric protein, and to be maintain their weights are very important। और इनके जो lab reports वगैरह, that would be significantly help them to cope the nutrition therapy, but that's all at my end, thank you।
Question answer, please. Thank you, Dr. Huma, for your valuable insights. We will have question answer session at the end. Moving forward, we are honored to have Dr. Farheen Latif Malik with us, a consultant pediatrician with decades of experience across Pakistan and Saudi Arabia. Dr. Farheen brings a specialized lens to how nutritional challenges affect the younger, most vulnerable patients in oncology, ensuring that we cover the full spectrum of care. Now, I would like to invite her and further elaborate chemotherapy and its side effects. Over to you, Dr. Farheen. Dr. Farheen, are you there? I think she has left the meeting, so we will move towards Dr. Latif Khattak. He is a powerhouse in public health and nutrition, an MD and Fellow of Royal Society for Public Health. Dr. Khattak brings vast experience from Bahria University Care and Hope platform. With over 50 conference presentations, he is the leading voice in managing global health challenges and policy-oriented initiatives. Now, I would like to welcome Dr. Latif to share their valuable insight on today's topic. Ji, Assalamu alaikum. Thank you, Malaika Michelle, for inviting me. I think we should rejoin the link because the session is going to expire in a minute or two. Okay, sure. Everyone rejoin the link, please.